स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਬੱਚੇ 1 ਬਾय 1 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਆ। ਸੋ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3, 4 ਐਂਡ 5। ਸੋ ਕੱਲਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 4th ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕੂਰੇਟ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 4th ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ? ਸੋ ਬੱਚੇ PDF ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ that stationary charge there is no motion, hence there is a no magnetic field, so at rest electric field is produced। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਿਰਫ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਐਂਡ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 0। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ -dV/dr। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ dr ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ dV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 0 ਆ। ਸੋ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ cos ਥੀਟਾ। ਸੋ cos ਥੀਟਾ ਆ ਟਰਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 0। ਸੋ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ 0 ਆਨਸਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ। ਸੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ V/M। ਸੋ V ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ mL² T-3a-1/L, ਮਤਲਬ M ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ L। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਔਰ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ J/ρ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਈ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ PDF ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਨੋ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਵਾਇਰ ਵੈਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ, and because in a current is produced in a conductor and magnetic field produced forcefully with the help of magnet। ਸੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਵੈਨ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋਜ਼, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਏ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ
इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटोन हैविंग सेम मोमेंटम, अगर सेम मोमेंटम आ तो कहते मैगनैटिक फील्ड जी आ वो किते डिपेंड करती आ। सो फॉर्मूला लिखा होया बच्चे आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, एम वी के इक्वल होंदा पी दे इक्वल, सो दी जगह ते असीं मोमेंटम लिख दिता। अगर मोमेंटम सेम आ तो रेडियस विल ऑल्सो भी सेम क्योंकि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, आर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पी की आ तुहाडा मोमेंटम। सो जे मोमेंटम सेम आ तो रेडियस भी की होएगा सेम होएगा। नैक्सट आ ट्रांसफॉर्मर जोड़ा डज नॉट वर्क ऑन डीसी, डीसी के उपर काम नहीं करता, सो द रीजन भी बच्चे इत्थे लिखा होया आ। नैक्सट आ इंफ्रारेड स्पैक्ट्रम लाइज बिटवीन, कित्थे कित्थे लाई करता है माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के विचकार, क्योंकि सेंटर च लाई करता है, प्रॉपर रीजन जोड़ा तुहानू गिवन है। देयर इज़ अ सैट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विच कन्वर्ज एज वेल एज वी गो फ्रॉम लैफ्ट टू राइट, जिद्दां ही लैफ्ट टू राइट जाने असी तो की हुंदा बच्चे आ तुहाडा लैफ्ट आ राइट आ, इधरों इधर जा रहे आ। सो उत्थे की हुंदा आ कहंदे स्ट्रोंगर कित्थे आ, इत्थे वीकर होएगा कि इत्थों स्टार्ट हो रहा एंड इधर हो रहा, एंड जिथे हो रहा इत्थे जड़ियां आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रोंग होणगियां, सो राइट हैंड साइड ते स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड होणगियां। नैक्सट आ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड रिपैल अ सबटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्यों रिपैल करता क्योंकि वह भी पॉजिटिव ही होएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपैल ईच अदर, सो सिंपल जिहा फंडा, सो पॉजिटिव आंसर आएगा। नैक्सट आ कहते एक सोप बबल आ इज़ अ नैगेटिवली चार्ज इट्स रेडियस, सो द रेडियस जोड़ा आ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा बच्चे मास दे। अगर कह लो कि ये क्वेश्चन के उन्होंने पूछा आ सोप बबल इज़ गिवन बाय अ नैगेटिव चार्ज, जिदा ही उन्होंने नैगेटिव चार्ज देवांगे, नैगेटिव का मतलब की होंदा आ कि वो नैगेटिव चार्ज मतलब कि मास इनक्रीज हो रहा, नैगेटिव चार्ज उत्ते आ रहा आ तो यदा मतलब उत्थे की हो रहा आ, जिन्ने ज़्यादा नैगेटिव चार्ज होएगा उन्ना ज़्यादा कह लो जिहड़ा उहदा चार्ज है इनक्रीज होंदा जाएगा, चार्ज इनक्रीज होएगा मतलब कि मास इनक्रीज होएगा, सो रेडियस भी इनक्रीज हो जाएगा। नैक्सट आ जो सॉलिड एंगल का बच्चे कितना वो एंगल बनाता, दैट इज़ 4 पाई, सो प्रॉपर सॉल्व करके लिखा होया। नैक्सट आ जो इफ द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड नियर द सर्फेस, बच्चे नियर द सर्फेस आ वाला क्वेश्चन बहुत केयरफुली करना। इस क्वेश्चन को लैके जड़ियाँ पिछे भी वीडियोज़ अपलोड कीतियां बच्चे उत्थे भी काफ़ी बच्चों ने इस टॉपिक के उपर डिस्कशन की, मैम सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आ। सो दोबारा ध्यान नाल समझ लो बच्चे, असी इलैक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाता, दैट इज़ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो क्यू की वैल्यू थोड़ी कितनी आ, क्यू की वैल्यू कितनी आ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। सो जिदा ही आप वैल्यू पुट की जो आपस में कट होंदा बच्चे कट दो, लास्ट में की बच गया सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अगर असी किसी पर्टिकुलर सरफेस के उपर असी इलैक्ट्रिक फील्ड जी सरफेस चार्ज डेंसिटी के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस पता करनी होवे तो नियर द सरफेस कितनी होंदी है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बच्चे कन्फ्यूज आ वाली चीज़ दे विच, ठीक है। सो असी कोई होर कंडक्टर नहीं लै रहे बच्चे, एक ही सरफेस लै रहे, एक ही सरफेस के नेड़े तेड़े किसी पॉइंट के उपर जी इलैक्ट्रिक फील्ड आ कितनी होएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो नैक्सट आ जाओ बच्चे, इफ द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर आर डबल, अगर असी लेंथ और एरिया डबल कर दिए तो न्यू रजिस्टेंस कितनी होएगी, न्यू रजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पएगा, जो लेंथ इनक्रीज हो रही है तो बच्चे उन्होंने कहा कि एरिया भी इनक्रीज हो रहा, सो दोनों चीज़ां 2 टाइम्स करती, 2 ना 2 कैंसल, सो सेम ही रहेगा। नैक्सट आ जाओ कहते हैं यूनीफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर आ और रेडियस स्मॉल आर आ इज यूनीफॉर्मली ड्रॉन अंडर अ रेडियस इज रिड्यूस टू आर ओवर एन इट्स न्यू रेजिस्टेंस। सो दी न्यू रेजिस्टेंस कितनी होएगी, उन्होंने सानू बच्चे एरिया का फॉर्मूला पता, एरिया कि इक्वल होंदा है 4 पाई आर स्क्वेयर। सो आर उन्होंने की किया है आर ओवर एन, सो आर ओवर एन पुट कर दिता, इत्थे कितना आ गया आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। ਇਹਦਾ मतलब आ सारी टर्म की सी ए, आ सारी टर्म की सी ए, सो ए डैश का आंसर कितना आ गया ए ओवर एन। सो जिदा ही असी वैल्यू पुट करांगे बच्चे साडे लास्ट के आर डैश का आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। सो नैक्सट आ जाओ एन इलैक्ट्रिक फील्ड चार्ज इज स्टेशनरी इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। बच्चे क्वेश्चन आ थोड़ा एन इलैक्ट्रिक चार्ज इज स्टेशनरी इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट द मैगनैटिक फोर्स। सो मैगनैटिक फोर्स कितना होएगा, सो बच्चे मैगनैटिक फोर्स भी जोड़ा थोड़ा वो 0 ही होएगा क्योंकि फॉर्मूला की होंदा है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो उन्होंने कहा थोड़ी वेलोसिटी 0 आ, अगर कोई चार्ज रेस्ट ते पिया स्टेशनरी आ वेलोसिटी 0 आ तो फोर्स भी कितना होएगा 0 होएगा। नैक्सट आ एन इलैक्ट्रॉन इज नॉट डिफ्लैक्टेड इन अ पासिंग थ्रू अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस कैन वी बी श्योर दैट देयर इज अ नो मैगनैटिक फील्ड। कहते
इलैक्ट्रॉन इज़ नॉट डिफ्लैक्टेड इन पासिंग थ्रू अ सर्टन रीजन, किसी पर्टिकुलर सर्टन रीजन के अंदर इलैक्ट्रॉन डिफ्लैक्ट नहीं कर रहा, डिफ्लैक्ट मतलब वाइब्रेट नहीं कर रहा, कि तुसी श्योर आ कि उत्थे मैगनैटिक फील्ड नहीं होएगी। सो रीजन ध्यान ना पढ़ लो, इट विल बी नॉट we tell about their direction of electron and a magnetic field, as we know the direction of motion is always direction of along direction of magnetic field, then f 0 हो जाएगा, but they do not tell about the direction, so we not sure, so ਅਸੀਂ श्योर नहीं होवांगे जे इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं हैगी तो मैगनैटिक फील्ड भी नहीं होएगी, ਅਸੀਂ इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ श्योर नहीं होवांगे। नैक्सट आ जाओ कि वाई परमानेंट मैगनेट आर मेड ऑफ स्टील, स्टील क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि उसकी हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी होंगी है, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर सी जी करैक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, वट हैपेंड इफ अ बार मैगनेट इज कट इनटू द टू पीस, अगर दो पीस के बच्चे इनू कट दिता जाए, कहते ट्रांसवर्सल टू इट्स लेंथ की होएगा। सो बच्चे हुण है कि आ, अगर असी किसी मैगनैटिक मैगनेट नू कट दिंदे आ तो वह मैगनैटिक मूवमेंट जिहड़ा हाफ हो जाता, बट उसकी स्ट्रेंथ दी प्रॉपर्टीज सेम रहिंदियां आ। सो मैगनैटिक मूवमेंट हाफ हो गया, पोल स्ट्रेंथ सेम रहिंदी है, सो इसदा डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी ते बच्चे टिक लगा लेना, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट आ, वाई देयर इज़ नो पावर लॉस इन आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर के अंदर कोई भी लॉस क्यों नहीं होंदा, लॉस ऑफ पावर इन इंडक्टर इज़ जीरो, सानू पता बच्चे लॉस ऑफ पावर इंडक्टर के अंदर कितना होंदा है, जीरो होंदा, बिकॉज करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, सो इन हाफ साइकिल वोल्टेज इज़ पॉजिटिव एंड इंक्रीजिज हाफ साइकिल ऑफ वेव करंट इज़ नैगेटिव, सो आपस में कैंसल आउट हो जाता, सो कोई भी लॉस नहीं होएगा। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, वाई इज़ द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमीनेटेड, उन्होंने लैमीनेट क्यों किया जाता, क्योंकि एडी करंट तो सानू जिहड़ा उहदा रिड्यूस किया जाए, सो रिड्यूस द एडी करंट लॉस, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज़ डबल, अगर असी नंबर ऑफ टर्न्स नू डबल कर दिंदे आ, हाउ विल इट्स सैल्फ इंडक्शन बी इफेक्टेड, सो सैल्फ इंडक्शन कितना इफेक्ट करेगी। सो एल कितने इक्वल होंदा बच्चे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई N1 N2 A ओवर L, सो जी थोड़ी L आ वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ N दे, सो असी इहदी जगह ते की लिख दिता N, हुण उन्होंने की किया कि N नू डबल कर दिता गया, जे डबल कर दिता जाए तो 2 2 ज़ा 4, सो 4 टाइम्स जिहड़ा आ इनक्रीज हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, कैन ए सी बी यूज फॉर इलैक्ट्रोलाइज वाई, कि ए सी नू असी यूज़ कर सकते हैं बच्चे, ए सी जिहड़ा है उहदी पोलैरिटी फिक्स नहीं हुंदी हैगी, सो नो फिक्सड पोलैरिटी, सो ऑप्शन नंबर ए जिहड़ी आ तुहाडी राइट आंसर आ जाएगी। सो रीजन बच्चे तुहानू दिता होया आ। नैक्सट आ जाओ 28 दे, द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चे किहदे करके हुंदा है, इन्फ्रारेड रेज करके। इन्फ्रारेड रेज क्यों आ, क्योंकि टैंपरेचर ऑफ अर्थ इज़ राइज एज अ रिजल्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉज्ड। नैक्सट बच्चे साडे न्यूमैरिकल स्टार्ट होने लगे आ, जिन्ने भी इस सैंपल पेपर के अंदर न्यूमैरिकल्स गिवन आ बच्चे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, सो ध्यान ना करके जाना। फर्स्ट आ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जिस इज़ डबल, अगर असी डिस्टेंस नू डबल कर दिए, मतलब आर की जगह पर की लिखन लगे हाँ 2R, सो आर की जगह पर असी सैकेंड F डैश से की लिखांगे 2R। नैक्सट आ, देयर इंडिविजुअल चार्जिस आर ऑल्सो डबल, सो Q1 Q2 की जगह पर भी की लिखन लगे हाँ 2Q। वट वुड हैपन टू द फोर्स, सो फोर्स नू की होएगा, सो बच्चे 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, नीचे भी 2 2 ज़ा 4, सो 4 ना 4 कैंसल, सो सेम ही रहेगा जो पहला रहा है, सो इसका मतलब सेम रहेगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ फाइनल आंसर। सो कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स, हुण 2 अल्फा पार्टिकल्स के विचकार बच्चे असी कूलम फोर्स पता करनी आ, ये तो ईजी क्वेश्चन सॉल्व किया होया बच्चे, ध्यान नाल तुसीं देख सकते हैं। नैक्सट आ जाओ, जागृति रूम्स हीटर इज़ अ मार्क्ड 1500 वाट एंड 250 वाट, वाट तो पता लग रहा है कि पावर है, वोल्ट तो पता लग रहा है कि वोल्टेज गिवन आ, फाइंड द परसेंटेज, सो परसेंटेज पता करनी है बच्चे, परसेंटेज तां ही पता करांगे जे सानू पर्टिकुलर पावर बारे पता होएगा कि उन्हें कितना इनिशियल सी ते कितना फाइनल सी। सो पावर हीटर जिहड़ा दूसरी टाइम ड्रॉप होया वो कितना आ 160, सो इसका मतलब V2 गिवन आ 160, इसका मतलब हुण सानू P2 पता करना पैना, सो P2 कित्थों पता करांगे, P2 इज इक्वल्स टू V2I, हुण प्रॉब्लम की है सानू I नहीं पता, सो I कित्थों पता कर सकते हैं, P इज इक्वल्स टू VI, सो I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय V, सो इत्थों बच्चे तुसीं I फाइंड आउट किया तो वैल्यू P2 जिहड़ी आ तुहाडी फाइंड आउट होगी। हुण जो P2 पता लग गई तो मतलब असी परसेंटेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज़
फाइनल माइनस इनीशियल डिवाइडेड बाय इनीशियल मल्टीप्लाई बाय 100 सो जस्ट वैल्यूज़ पुट कीतियां सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा। नैक्सट आ जाओ 32 ये बच्चे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उन्होंने क्या कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब कि एफ की वैल्यू कि इक्वल होंगी क्यू वी बी साइन थीटा। जस्ट वैल्यूज़ पुट कीतियां तो डायरैक्ट आंसर आ जाएगा। सो बच्चे अगर तुहानू फॉर्मूलेज अच्छी तरीके नाल लर्न आ तो डेफिनेटली तुहाडे जिहड़े न्यूमैरिकल्स आ बहुत ईजी वे नाल सॉल्व हो जाएंगे। 22 और 23 बच्चे आपस ਵਿੱਚ सेम मैच करते हैं। अदरवाइज पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਦਾਂ नहीं ਹੁੰਦਾ कि सेम दो ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 32 और 33 ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਲਮੋਸਟ सेम क्वेश्चन ही आ। नैक्सट आ जाओ 34 ਤੇ बच्चे सैल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन वाले जोड़े क्वेश्चन आ वो भी ध्यान नाल करके जाना। हुण जिद्दां इत्थे इन्होंने पूछा कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF मतलब ई पता करना। सो ई किहदे इक्वल हुंदा आ ई इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। हुण बच्चे इत्थे देखो मैगनैटिक फील्ड B गिवन आ, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन आ ते एरिया गिवन आ। सो फाई की जगह तो असी की लिखन लगे हाँ BA। सो नंबर ऑफ टर्न्स आ तो एन दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता है NBA डिवाइडेड बाय DT। बाकी सारी वैल्यूज़ सानू गिवन आ पुट कीतियां सॉल्व किया तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। लास्ट आ बच्चे 5th यूनिट के विचों एक न्यूमैरिकल आया होया क्योंकि एक न्यूमैरिकल 5th यूनिट के अंदरों आएगा ही आएगा। अ रेडार ट्रांसफर जनरेट्स वेव हुज फ्रिक्वेंसी। हुण बच्चे फ्रिक्वेंसी मतलब थानू कि म्यू गिवन है, ठीक है, म्यू गिवन है, आ चीज़ थानू गिवन है। वट इज़ द वेवलेंथ कितना होएगा। सो लैम्डा किहदे इक्वल हुंदा C/म्यू। सो जस्ट वैल्यूज़ पुट करो और तुहाडा आंसर आ जाएगा। क्लीयर हो गया। सो बच्चे ये साडा सैंपल पेपर 4th सी।